molecule. Now what do I mean by the substrate molecule? Substrate molecule मतलब जिस molecule के ऊपर मेरा enzyme काम कर रहा है, जिस substance के ऊपर मेरा enzyme action कर रहा है, that is your substrate molecule. कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, कि फैट्स को तोड़ रहा है, वो किस स्पेसिफिक सब्सटेंस को तोड़ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम उसका नाम रखेंगे. दूसरा, वो क्या फंक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ब्ला ब्ला, दैट वे. सो इफ इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज. तो हर एक एंजाइम के पीछे अगर आप देखोगे ना, ASE, ये ज्यादा एज ऑलमोस्ट हर एक के पीछे लगाया जाता है of all enzymes. Now for example, substrate molecule is maltose. Maltose is a type of a sugar. Maltose is a type of a carbohydrate. ये maltose, fructose, galactose, ये tose, that tose, वो सब ना आप लोग 12th में galactose नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. गैलेक्टोस भी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है, एक शुगर का नाम होता है. तो लिपिड इज बेटा अ टाइप ऑफ प्रोटीन, फैट्स में आ जाएगा लाइपेज. यस, वेरी गुड. फ्रॉम लिपिड. लाइपेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम, ठीक है. तो उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो लाइपोज ऐसा कुछ होगा, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, if it is maltose, the enzyme which is acting on maltose, which is acting on breaking this carbohydrate molecule, it will be called as maltase, ठीक है. maltose का जोड़ी किस कौन है, maltase है ना. maltase. ये देखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नाम रहता है उसके अंदर. So substrate molecule is nothing but the molecule on which the enzyme is working, acting, ऐसा. अभी कुछ हम enzyme के reactions, certain examples of reactions which are enzyme catalyzed. Now when I say enzyme catalyzed मतलब जिसके अंदर ये biochemical catalyst यूज होता है. बायोकेमिकल कैटलिस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. मोस्टली इट इज नेचुरली अवेलेबल और इट कैन आल्सो बी केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, बट उसका जो सोर्स होता है वो नेचुरल ही होता है जनरली, ठीक है बच्चे. सो लुक एट दिस, सब एग्जांपल्स आप लिख लेना प्लीज. सो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. केन शुगर ऐसा मत समझना शुगर केन को उल्टा लिख दिया बेटा. Cane sugar is the carbohydrate. It is the type of sugar which is present in क्या बोलते हैं, your sugar cane, your sugar and all those things, ठीक है. So hydrolysis of cane sugar. Hydrolysis means breaking down of the compound in the presence of water because of water. तो ये प्रोसेस को hydrolysis of cane sugar is speeded up with the help of the enzyme called as invertase. ये देखो, this invertase converts cane sugar को हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं. सुक्रोज शक्कर के अंदर जो मिठास प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है जिसकी वजह से वो मीठा होता है, that is broken down into glucose and fructose which are simpler molecules. Hello. हाँ बेटा. Sir, will you repeat? I was disconnected. I will definitely repeat. So from cane sugar. हाँ बेटा. So cane sugar से what I'm saying is cane sugar is nothing but your sucrose, the sugar which is present inside your sugar cane and your normal sugar which we have, ठीक है. So this cane sugar is broken down into simpler molecules. अभी देखो C12H22O11 is a heavy molecule. C6H12O6 is a simpler molecule, is a small molecule. So this sugar molecule or this carbohydrate molecule is broken into simpler glucose and fructose with the help of the enzyme called as invertase. Simple. Sir, fructose में O5 आएगा ना?
फ्रुक्टोज नहीं बेटा, फ्रुक्टोज C6H12O6 ही है, 5 क्यों आएगा? यस यस ओके बेटा, दोनों सेम है हाँ। सर वी हैव टू राइट दिस सर एग्जांपल दोनों को ऐड करके नहीं लिख सकते? क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? नो सर, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, हाँ, तो इसको ऐड करके नहीं लिख सकते? नहीं हम इसको ऐड करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑल्दो दे आर हैविंग द सेम molecular formula but they have different structural formula. Have you ever heard of two compounds which have same molecular formula but different structural formula? उनको हम लोग कुछ बोलते हैं आइसोमेरिज्म में। क्या, which type of isomerism is it? अच्छा, आइसोमेरिज्म सीखा है तुमने? पहला तो क्वेश्चन वो है। Do you know what? Do you know what is an isomer? अच्छा, नहीं पता। अच्छा, Yes. क्या कभी 10th में सीखा था कि 11th में आके सीखा? यस 10th 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी गुड। Structural Yes, isomerism. correct. Structural isomerism, tautomerism and all those things. उसको डिटेल में 11th में भी पढ़ोगे। So अभी देखो बेटा, aldehydes and ketones वो दोनों का ना जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहता है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। रिमेम्बर? Yes, तो yes. ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेम है, बट उनका अरेंजमेंट, the position of the functional group is going to be different, and that is why it is going to behave differently, and that is why it has two different names. उसका chemical reactions will be different. ठीक है बच्चे, इसलिए हम इनको directly to मतलब add करके नहीं लिखेंगे. It is broken down into simpler form that way. Okay guys? सर वी हैव टू राइट दिस Yes. एग्जांपल Yes, reaction. बेटा प्लीज राइट डाउन द रिएक्शन। आपको काम आएगा अगर एग्जाम में आपको गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा सिर्फ ये दिया रहेगा आपको, केन शुगर प्लस वाटर एंड ऑन एरो इन्वर्टेज, आगे कंप्लीट करो। या फिर आपको दिया रहेगा ये रिएक्शन है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो इन्वर्टेज ऐसा याद रखना आपको। अनदर एग्जांपल इज ग्लूकोज। देखो बेटा, glucose is converted into ethyl alcohol by the release of carbon dioxide gas. The enzyme zymase is used. ये बेटा, ये glucose being converted to ethyl alcohol, it's a very old, it's as simple as a fermentation reaction. How do I say this? You know, ethyl alcohol is the basic component of all the daru which is available on earth. You know this, right? yes Yes. So Yes. ethyl alcohol is nothing but daru. ठीक है? So alcohol is a functional group which is present. There are many type of alcohol compounds: methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol, and you name the substitute alkane and you will get the corresponding alcohol. ठीक है? As you go on with the increase in the atomic number, with the increase in the carbon atoms, अपना क्या बोलते हैं, that alcohol starts converting into solid and liquid, gaseous, ऐसा। ये जो बेसिक है आपका, ये लिक्विड्स होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। मिथाइल अल्कोहल अगर कंज्यूम किया तो आंखों का प्रॉब्लम होता है, आदमी अंधा होता है, इट कैन ऑल्सो बी फेटल, मतलब डेथ भी हो सकता है आदमी का अगर मिथाइल अल्कोहल पिए तो। ethyl alcohol is consumable. A good amount of ethyl alcohol can be consumed, but it is very addictive, and it directly hits the central nervous system, and then you start Liver. and you the earth starts rotating. ऐसा that doesn't mean कि जब भी कॉलेज चालू होगा और आप लेबोरेटरी में जाओगे और वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इथाइल अल्कोहल रखा है, उठा के पीने मत लगना बेटा, ठीक है? इट्स प्योर फॉर्म नहीं पिया जाता है उसका, इसके अंदर ऑब्वियसली मिक्स होता है, ठीक है? सो पहली बात तो इट्स नॉट गुड एट ऑल. आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस प्रोसेस व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द नॉर्मल फर्मेंटेशन. वो व्हीट जो आपका बियर वगैरह होता है ना बेटा, वो इसी प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से. आपके क्या बोलते हैं, व्हीट बियर हो गया, ग्रेन बियर हो गया, बार्ली बियर हो गया, वो सब उनका जो अंदरूनी कंटेंट है दैट इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट.
कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है बेटा? ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह, ये सब। ग्लूकोज। हाँ बेटा, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, गुड। ठीक है, ये लिख लिया बेटा एग्जांपल्स, कैन वी गो अहेड? यस सर। अच्छा, Yes. यहाँ देखो, मोर एग्जांपल्स। द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च हो गया। अभी स्टार्च इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्टार्च आपको पता होगा, जो चावल के अंदर होता है, व्हीट के अंदर होता है ना, वो उसको आलू के अंदर स्टार्च, होता है। आलू के अंदर भी होता है बेटा। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव diastase. This is the enzyme which is converting starch to maltose. Starch is a long chain complex molecule. It is broken down into a simpler maltose molecule with the help of diastase. अच्छा, माल्टोज भी कोई बहुत ज्यादा सिंपल वाला मॉलिक्यूल नहीं है, तो माल्टेज को भी फर्दर हम लोग क्या बोलते हैं, maltose, sorry, not maltase, maltose converts maltose into glucose. तो glucose is a simpler form. ये ग्लूकॉन डी वगैरह पिया होगा कभी, तो ग्लूकॉन डी के अंदर ना ये होता है, ग्लूकोज वगैरह होता है। अभी वो डी, व्हाट डज दैट डी स्टैंड फॉर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब सुना है कभी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। नो ओए, वो लैपटॉप है, फोन नहीं, ऐसा पकड़ रहा है। बेटा आपका माइक ऑन है। हाँ, सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब ना आप लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हो, तब आपको बहुत मजा आएगा बच्चे समझने के लिए कि क्यों इसको डी नाम दिया है, क्यों सर, उसको एल नाम दिया है। हाँ बेटा, सर ये एन क्या है? N is the number of molecules which are present. This is a polymer. Actually ना, ये जितने भी molecules होते हैं ना, starch हो गया, maltose हो गया, carbohydrates, proteins, fats, these are all organic polymers. These are all biopolymers. Polymer, you know what is a polymer? Polymer is it's a chain of repeating units. मतलब polymer पता है? PVC पता है? Polyvinyl chloride सुना है? यस Yes. PVC pipe. पॉलीथीन सुना है? पॉलीथीन, Yes. यस अपना नॉर्मल प्लास्टिक Plastic. पॉलीथीन। पॉलीथीन। हाँ, polythene. पॉलीइथीन। Ethene. इथीन का एक मॉलिक्यूल n टाइम्स आप रिपीट करो, दैट n कैन बी 80, इट कैन बी 100, इट कैन बी 200, इट कैन बी 1 लाख, 1 लाख, इट कैन बी 20 लाख। तो Infinite. इन नॉट 1 इनफाइनाइट बिलियन। तो नहीं, हाँ बेटा, यू नेम द नंबर, इतना अपन बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि वो कितनी बार उसको रिपीट किया गया है पॉलीमरिक यूनिट के अंदर। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट। 12th में यू हैव अ डिटेल्ड चैप्टर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। उसमें आप सीखोगे कि पॉलीमर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये पॉलीमर्स क्या होता है ना बेटा, रिपीटिंग वन, एक यूनिट। पॉलीमर का मतलब पता क्या? पॉली मींस मेनी and mer means a unit, a single unit. So when a single unit is repeated many times, you get a polymer. Simple. तो यहाँ के इसमें ना, इसका सिंगल यूनिट क्या है? C6H10O5. This is one small unit. This small unit, when repeated n times, will give me a large molecule of starch. ये बेटा, आपने कभी वीट गेहूं चबाया है कभी? यस। वो Yes. च्युइंगम जैसा होता है ना, उसको आप जल्दी हाँ. से, मतलब अगर आप उसको चबाते रहोगे ना, वो कभी जल्दी टूटता नहीं है, और आप स्टार्टिंग में Yes. जूस निकलेगा और उसके बाद इट बिकम्स टेस्टलेस। द टेस्टलेस थिंग व्हिच इज लेफ्ट इन योर माउथ इज द स्टार्च। Yes. ओके बेटा, सो Sir. दिस, हाँ बेटा बोलो। चुप हो गया। This starch is converted to maltose with the help of diastase. This maltose, which is again a big molecule, is hydrolyzed or is broken down to glucose in the presence of maltase. I hope सबने लिख लिया हो reaction. यस। Yes. आ जाओ, ये देखो, these enzymes, invertase, zymase, maltase, ये भी तो कहीं से मिलते होंगे ना। अगर ये भी तो कंपाउंड है,
अगर एंजाइम है तो क्या हुआ, अगर कैटलिस्ट है तो क्या हुआ, ये भी तो एक कंपाउंड ही है ना। तो ये कंपाउंड अपने को किधर से मिलता है, तो these invertase, zymase and maltase are ये हम लोग को यीस्ट से मिलता है। ठीक है बेटा, इतना डिटेल अपने को टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक से इसको कंपेयर करोगे ना तो इतना डिटेल अपने को नहीं है। मैं I always repeat myself that whatever we'll be learning a little extra because it's never going to be harmful, it's going to help us. Yes. देखो, यूरिया Sir. Hello. is broken down and carbon dioxide Sir. in the presence of the enzyme called as urease. हाँ बेटा बोलो। सर सारे एंजाइम्स यीस्ट से मिलता है? सारे एंजाइम्स नहीं, बट ये जो एंजाइम्स हमने अभी देखे ना 3, these are क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। और हर एक का अलग अलग सोर्स होता है, तो वो सोर्सेज मतलब मोस्टली द सोर्सेज आर ऑब्वियसली बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। most of them can be synthesized in the laboratory also. हम उसको लैब में सिंथेटिकली भी बना सकते हैं ऐसा। ओके सर। अच्छा, ये यूरिया पता है, यूरिया बेटा जो हम लोग फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं एंड ऑल। यस सर। दिस यूरिया ना, दिस यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड, rather it is broken down into ammonia and carbon dioxide in the presence of the enzyme called as urease. Urease. The source of urease is soybean. सोयाबीन पता सब लोग को, ये दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? इसकी सब्जी खाई है कभी? Yes. सोयाबीन की सब्जी खाई है? No. हाँ, घर में बनती होगी, तुमने नहीं खाई है वो बात अलग है, बिकॉज जिस तरह से इसकी शक्ल है अच्छी लगती नहीं है किसी को, बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑल। Yes. तो यू शुड Yes. ईट सोयाबीन। सो यूरिएज का Yes. सोर्स, हाँ भाई हाँ, यस यस यस, ठीक है। सो सर वो रिएक्शन दिखाओ ना, कौन सा रिएक्शन बच्चा? पहले वाला। हाँ यस। एगो? यस यस। अच्छा, मैं पता है मैं सो रहा था, अचानक से मेरी आँख खुली 3:15 बजे। ओ माय गॉड, लेक्चर है। सो दिस एंजाइम यूरिएज का सोर्स इज सोयाबीन। इंग्लिश में उसको सोयाबीन बोलते हैं, हिंदी में अपन उसको सोयाबीन बोलते हैं, सोयाबीन। ठीक है। अच्छा, ये देखो, हाँ भाई, ये बोलो बेटा, बोलो, ये कौन है जो सौर बोल के रह जाता है हमेशा? लैक्टोस। लैक्टोस। स्टूडेंट का नाम लैक्टोस है? एंजाइम्स नहीं। अच्छा, एंजाइम, वेरी गुड। सर वो एंजाइम बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, ओके, ठीक है। ये देखो बच्चे, अभी अपने पास दूध है, ठीक है, तो ये दूध का दही बनता है, दही दही दूध का फटना, ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं ना दूध का फटना, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वेरी गुड। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, Lactobacilli is the bacteria because of which our सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था। ब्रेकिंग ऑफ वॉइस। क्या बेटा, आवाज ब्रेक हो रहा है? अभी भी ब्रेक हो रहा है? नो सर। No, sir. अच्छा अच्छा। No. So this curdling of milk is because of this lactobacilli bacteria, ठीक है ना। तो अगर आप कर्ड को देखोगे ना बेटा, अगर आप कर्ड को माइक्रोस्कोप में डाल के देखोगे तो यू कैन सी वेरी स्मॉल बैक्टीरिया मूविंग इन इट। You can see very small bacteria moving in it. अगर आप कर्ड को देखोगे, you can see very small bacteria moving in it. Not with the naked eyes, of course. I'm talking about microscopic analysis of the curd. तो उसमें अगर आप देखोगे तो you can see live bacteria. तो वो देख करके आपका कर्ड खाने का मन नहीं करेगा. But it is very healthy for humans. ठीक है?
there are so many enzymes present inside your body. स्टमक के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पैनक्रियाज Yes. ये वो Yes. Yes. and curd is very tasty also. curd के अंदर शुगर डाल दो तो बहुत टेस्टी लगता है. Yes. ये देखो. Yes, sir. अच्छा, Yes. now you can get a separate 2-mark question saying list down any 4 fundamental characteristics of enzymes. जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना बेटा, they are shape specific, they are temperature specific, they are pH specific. तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया था वो सब कि बॉडी का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंजाइम, बॉडी का पीएच पे डिपेंड करता है, शेप सिलेक्टिव होता है एंड ऑल. तो उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. ये देखें आप, they have high efficiency, high specificity. efficiency क्या होता है बेटा? थोड़ा सा भी एंजाइम उस रिएक्शन को बहुत अच्छे से कैटलाइज कर सकता है. efficiency is what बेटा? output upon input. efficiency किसी मशीन का होता है. efficiency अगर बात करें कि भाई इस how efficient is this person, how efficient is this machine, मतलब वो अपने काम का आउटपुट कैसा दे रहा है. तो अगर मैं थोड़ा भी एंजाइम यूज करूं तो मेरा जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से कैटलाइज होता है. सो दीज एंजाइम्स दे आर हाईली एफिशिएंट, दे आर हाईली स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. माल्टोज को ही ब्रेक डाउन करेगा, माल्टेज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा. वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को माल्टेज ही चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोगे तो मैं उसको तोड़ेगा नहीं. वैसा दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. जो मैंने आपको बोला कि का जो पीएच है नॉर्मल कंडीशंस में, उसी के ऊपर उसका एक्टिविटी हाईली एकदम चरम सीमा पे रहता है वैसा. अच्छा, मतलब ऑप्टिमम पीएच मतलब सूटेबल पीएच एट अ पर्टिकुलर पीएच ओनली, स्पेसिफिक पीएच ऐसा. ओके. a particular level of pH, a particular range of temperature ऐसा. Increased activity in presence of enzyme activators. Remember हमने catalyst का ये देखा था, Catalyst promoter. Very good बेटा. हम लोग ने catalytic promoter देखा था. वैसे ही enzyme activators are similar to catalytic promoters. And increased activity in presence of coenzymes. So this enzyme activators and coenzymes, they are very similar to your catalytic promoters. Okay. Acha, they show decreased activity in the presence of enzyme inhibitors and poisons, similar to catalytic poison. ठीक है बेटा? जैसे मेरा इन कैटलिस्ट का एक्टिविटी को, कैटलिस्ट का रिएक्शन को स्लो करता है पॉइजन, वैसे ही इनहिबिटर एंड पॉइजन, दीज आर टू substances which can stop, which can slow down the process of the enzyme, the catalytic activity of a enzyme. ठीक है बेटा? This is similar. Inhibit means to control something, to stop something ऐसा. Now let us discuss these characteristics. लिख लिया ये सब? Yes. No, sir. Yes, No, sir. sir. अच्छा, वैसे हम लोग इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अभी तो मैंने आपको बस ओवरव्यू बताया उनका. चलो, कैन आई गो अहेड बेटा? Yes. 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 Now let us see high efficiency, how they speed up the reaction. अच्छा, पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड ना बेटा, ये बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है. पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड जो होता है ना बच्चे, दिस इज प्रेजेंट इन योर प्रोटीन्स. ठीक है, ये एक हाईली स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है. And to break this bond or to break the protein into simpler molecules, it is not that easy. ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस से अगर अपन करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है बेटा. बट
एक कैटलिस्ट डाला ना, चुटकी बजा के काम होता है। ये इतना एफिशिएंट होता है, इतना अच्छा होता है। So to break this bond, we have to heat it in the presence of a alkaline, this amide linkage इसको तोड़ने के लिए। तो ठीक है। So now इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना, प्रोटीन्स के अंदर ये पेप्टाइड या फिर अमाइड लिंकेज होता है। ये देखो CONH आपको दिख रहा होगा, मैं कर्सर मूव करूंगा तो आवाज ब्रेक होता है। तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना मतलब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तभी हो पाएगा। अब सिर्फ पानी के प्रेजेंस में उस बॉन्ड को तोड़ना इज नॉट दैट वेरी इजी, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इन द इंटेस्टाइन्स। सो प्रोटीन amino acids, beta, amino acids are smaller molecules. When these smaller molecules of amino acids, they join together, these small units, when they join, they give me the polymer of protein, ठीक है। तो amino acids are simpler molecules. These small simpler molecules, they join one by one and they give me the protein polymer. So this protein polymer, which is held together by a strong peptide bond or a amide linkage, is CONH bond ko I'm calling as the peptide bond or the amide linkage. It is broken, it is hydrolyzed in the presence of water in your small intestine with the help of enzymes. अभी देखो बच्चे, सबस्ट्रेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबस्ट्रेट इज द मॉलिक्यूल ऑन विच क्या बोलते तो भी योर एंजाइम इज वर्किंग, ठीक है। सो दिस सबस्ट्रेट अगर बिना एंजाइम के काम होगा, सबस्ट्रेट का अगर रिएक्शन होगा विदाउट एंजाइम, प्रोडक्ट्स तभी भी मिलेगा। बट सबस्ट्रेट पे अगर मैं एंजाइम डाल के रिएक्शन करवाएगा ना, तो मेरा प्रोडक्ट मेरे को जल्दी मिलेगा। अभी ये कितना जल्दी, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। लेट अस सी वन एग्जांपल। देखो, समटाइम्स ना years for a protein to break down, इतना कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होता है वो। बेटा कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, पता है, ये एक तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऊपर से ये लोग आपस में बॉन्डेड हैं with this peptide linkage and a long chain is formed. अभी तुमको पता है प्लास्टिक नहीं पता? Yes. हाँ, प्लास्टिक पता है। हाँ, वेरी गुड। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर ना बेटा? Yes. 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 प्लास्टिक को डिग्रेड होने को कितना टाइम लगता है? Thousands of years. Thousands of years. Millions of year. हाय हाय, 1000 बोलता है, 1,000,000 बोलता है। बहुत टाइम लगता इन है। शॉर्ट बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स, देन द टाइम इज हाँ, नॉट yes. इन hours, it is not in weeks, it is not in months, but it is in years, Months. ठीक है। Yes. तो बहुत टाइम लगता है। वैसा ही पॉलीमर अपना कार्बोहाइड्रेट भी है, अपना प्रोटीन भी है, अपना फैट्स, अपना लिपिड्स भी है, ठीक है। तो ये जो टाइम, इतना लंबा टाइम लग रहा है ना बेटा, ये बिना एंजाइम के लगेगा। अगर एंजाइम नहीं होगा तो अगर आपने एक प्रोटीन खाया, सोयाबीन खाया या फिर चिकन खाया या फिर अंडा खाया जिसके अंदर प्रोटीन रहता है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है, 0.1 ग्राम और 1 ग्राम और whatever amount of protein is present inside that molecule, to break down that molecule and to extract energy from it or to extract growth hormones from it for your body, it will take years. तो अगर आज मैंने चिकन खाया तो 80 साल बाद वो चिकन का मेरे को प्रोटीन मिलेगा। ए बेटा, कुछ काम है उसका, मर जाएगा रे आदमी, 80 साल तक कोई जिंदा भी नहीं रहता है, राइट। इसीलिए भगवान बोला कि चल भाई, मैं थोड़ा सा सो गया था ये प्रोसेस बनाते वक्त, तो अभी मेरा गलती सुधारने के लिए मैं बॉडी में एंजाइम्स डाल देता है, तो ये एंजाइम्स आएगा तो ऐसा काम फटाफट हो जाएगा। ये देखो बेटा, are you looking at this time difference? जहां एंजाइम के एक रिएक्शन को इयर्स लग रहा है, वहीं पे वो रिएक्शन सेकंड्स में हो जा रहा है, सेकंड्स में। अरे भाई, अभी खाया दोपहर को चिकन, शाम को पच गया, शाम को फिर से वही दोपहर का बचा हुआ चिकन फिर से खाया, मतलब
मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे होता है ना बेटा, संडे के दिन चिकन बनता है तो कैसे होता है, Yes. डैड सुबह चिकन लेने जाते हैं, दोपहर को Yes. मम्मा चिकन बनाती है, मस्त चाप के चिकन खाते हो, शाम को Yes. टका लेते हो और रात को बचा हुआ वही मिलता है, मम्मी बोलती है इसको वेस्ट नहीं करना बिकॉज इट इज कॉस्टली। Yes. So now look at this example. सर It takes 50 years for one single protein rich meal to digest. और enzymes के presence में that protein is digested very quickly. Seconds. बोल रहा था। सर सबस्ट्रेट का मतलब फिर से सबस्ट्रेट का मतलब फिर से बताता हूँ बेटा मैं। अच्छा माल्टेज का एग्जांपल देता हूँ। माल्टेज और माल्टोज हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, यस ठीक है। माल्टोज क्या है और माल्टेज क्या है मुझे बताओ बेटा। माल्टोस एक एंजाइम है ओके और माल्टेज सॉरी माल्टेज एंजाइम है और माल्टोस माल्टेज एंजाइम है और माल्टोज क्या हाँ। है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है हाँ ठीक है। माल्टोज तुम्हारा सबस्ट्रेट है और माल्टेज तुम्हारा एंजाइम है। एंजाइम ऑलवेज वर्क्स ऑन अ सबस्ट्रेट। अभी समझा बेटा? Substrate is the compound, it is the molecule on which the enzyme is working. वर्किंग यस ठीक है? थैंक यू ओके बेटा, ये देखो कि how is my enzyme working by how is my enzyme helping in increasing the reaction? It is increasing the speed of the reaction by lowering the activation energy. ये I think मैंने पहले भी बताया था catalysis समझाते वक्त। Yes. Yes. Lowering the requirement of activation energy पता है, मैंने बताया था बेटा। Yes. Yes. हाँ, तो यहाँ पे भी वही सेम है, भले ही बायोलॉजिकल रिएक्शन है पर रिएक्शन को एनर्जी तो लगता ही है ना। मतलब जिस प्रोटीन हाँ। मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे इतना ज्यादा एनर्जी लग रहा था, उस एनर्जी का रिक्वायरमेंट एक एंजाइम ने कम कर दिया। एंजाइम ने वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम कर दिया, इसलिए मेरा प्रोटीन मॉलिक्यूल जल्दी से डाइजेस्ट हो गया। सिंपल एज दैट। ये देखो, absence of enzymes, presence of enzymes. Absence of enzyme में I was requiring a huge amount of energy, ठीक है, बड़ा एनर्जी लग रहा था मेरे को। And in the presence of enzymes मुझे बहुत कम एनर्जी लगा उस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में या फिर ब्रेक डाउन करने में। Breakdown. Lowering of activation energy. इजी ग्राफ है बेटा, अगर आपको बनाना ना तो ये बना सकते हो, मतलब कहीं एक्सप्लेन करने को आया और आपने एक छोटा सा ग्राफ बना दिया ना तो इट गिव्स अ गुड इमेज ऑफ यू। डन? No. No, 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 no. Yes, done, done. डन? Yes, No. yes, 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 yes. No. ओके बेटा, हाँ भाई, हाँ ठीक है, ओके। चलो लेट्स गो अहेड, स्क्रीनशॉट Yes, ले yes. लो या फिर से देख लेना। Now let us look at this high specificity feature of my enzymes. ये देखो, ये maltase is the enzyme which is helping me break down cane sugar. Maltase is the enzyme which is helping me break down maltose. ठीक है? Each enzyme catalyzes only one chemical reaction. ऊपर इन्वर्टेज था तो नीचे इन्वर्टेज काम नहीं करेगा, नीचे माल्टेज काम करता है तो ऊपर माल्टेज काम नहीं करेगा, इतना स्पेसिफिक होता है। This is the indication that these enzymes they are highly specific in nature. ये देखो, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट का क्या सीन था बेटा? एक से ज्यादा कैटलिसिस कर सकते हैं। आयरन जो कैटलाइज कर रहा था हेबर्स प्रोसेस, वही आयरन किसी दूसरे रिएक्शन को भी कैटलाइज कर सकता है। निकल
बहुत सारी जगहों पे कैटलिसिस में यूज होता है, वेनेडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, है ना बेटा? यस yes, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट या एक कंपाउंड एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन में काम आता है। एंजाइम्स भाई ये बहुत शाणे, ये बोलते हैं नहीं भाई मैं सिर्फ एक ही रिएक्शन को ये करेगा, अपना कैटलाइज करेगा, मेरा जन्म सिर्फ इस रिएक्शन, इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हुआ है, या फिर इस कंपाउंड की स्पीड बढ़ा, इस कंपाउंड के रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हुआ है, मैं किसी दूसरे में हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए ये जो एंजाइम्स है ना, इनका नेम्स is specific to the substrate on which they are working. Understanding बेटा? माल्टेज के ऊपर Yes. माल्टोज काम कर रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया, माल्टोस माल्टोज के ऊपर माल्टेज माल्टोस के काम ऊपर कर रहा है। माल्टेस हाँ, माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम कर रहा है, तो उसका नाम जो माल्टेज पड़ा है वो माल्टोज की वजह से पड़ा है, और किसके ऊपर वो काम करेगा ही नहीं। ये इतना स्पेसिफिक होता है बेटा अपने नेचर में। These enzymes are also proteins only. The problem is that enzymes are different. These enzymes molecules they catalyze one specific reaction, ठीक है, but in very efficient manner. यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इंडस्ट्री के अंदर मुझे अगर एक रिएक्शन कैटलाइज करना है तो मुझे कम से कम, अगर मतलब सपोज मुझे अमोनिया बनाने का है, तो अमोनिया में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया था बेटा आपने? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करने के लिए निकेल यूज कर रहे थे कि आयरन निकेल। यूज कर रहे थे? आपने रिएक्शन लिखा था ना कल, आयरन आयरन आर यू श्योर? निकल है सर। निकल। एक ही बुक में लिखते, मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ। ये रिएक्शन जो लिख रहे हो, जो नोट्स आप लिख रहे हो, सब एक ही बुक में लिख रहे हो कि हर बार रोज नया नया पेज पे बनाते हो? एक ही बुक हाँ, तो एक ही बुक में है तो देख के बताओ ना फटाफट, हेबस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? आयरन सर, आयरन अभी कोई बोल रहा है निकल, कभी कोई बोल रहा है आयरन। आयरन वेरी गुड, मालूम है सर, आयरन आयरन, ठीक है। तो अभी देख बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, तो इंडस्ट्री में अमोनिया एक बड़े स्केल पे बनता है। अगर बेटा मेरा यूरिया बनाने का कंपनी है, ठीक है, मैं फर्टिलाइजर बनाता है जिसके अंदर यूरिया यूज होने वाला है, तो मैं कितना 1 किलो 2 किलो अमोनिया सिंथेसाइज करूंगा यूरिया बनाने के लिए? सर वॉइस ब्रेक हुआ, क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या 1 किलो या 2 किलो अमोनिया बनाऊंगा यूरिया बनाने के लिए? नहीं, right? मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब 1 लाख किलो 1000 लीटर्स, 1 लाख लीटर्स, 2 लाख लीटर्स इतना अमोनिया बनाऊंगा, तो उसके लिए मतलब मिलियन उतना, लीटर। हाँ, एक्सीलेंट बेटा, you can be the बादशाह of ammonia, ठीक है, you can be the biggest chemical company in this world। तो उस टाइम पे वो रिएक्शन भी बड़े बड़े बिल्डिंग साइज कंटेनर्स के अंदर होता है, तो उसके लिए उतना ज्यादा बड़ा लेवल का रिएक्शन के लिए मुझे क्या थोड़ा सा आयरन थोड़ी काम आएगा, मुझे कम से कम 3-4 किलो या फिर 5-10-15-20 किलो आयरन लगेगा उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। तो वहां पे थोड़ा ज्यादा मेरे को कैटलाइज ये लग रहा है, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, कर्ड घर में बनाया, किसी को पता होगा, मतलब हम लोग तो घर में कर्ड बनाते हैं, तो दूध गर्म करके ना उसके अंदर बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ कर्ड डाला ना, तो अगले दिन सुबह तक वो 1 लीटर दूध का कर्ड बन जाता है, ऐसा। यस इवन इफ यू पुट a quarter of spoon of dahi in it na, the entire milk will become dahi that way। इतना efficient और इतना specifically वो काम करता है। तो एंजाइम्स का ये एक बात है कि भाई एक रिएक्शन को एक ही एंजाइम कैटलाइज करेगा, बट इतने अच्छे से कैटलाइज करेगा ना कि अपनी जवाबदारी पूरी तरीके से निभाएगा वो, ऐसा। सो दैट इज द डिफरेंस। ये देखो, सबस्ट्रेट देखो, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम का शेप है, तो ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है। दिस वन एंजाइम मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग thousands of substrate molecules। तो अगर एक एंजाइम मॉलिक्यूल thousands of substrate molecules पे काम कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा एंजाइम मॉलिक्यूल डाल दूंगा,
और इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो मेरा काम तो हो गया ना। एक एंजाइम मॉलिक्यूल थाउजेंड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स पे काम करता है, तो मेरे पास सपोज 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, तो मेरा तो काम बन गया पूरा उस पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? आर यू मल्टीप्लाइंग इट 1000 into thousands? सर रिपीट करो ना। अच्छा, ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल, वन एंजाइम मॉलिक्यूल इज वर्किंग ऑन thousands of substrate molecules। इसका मतलब ये है कि माल्टोज का एक मॉलिक्यूल माल्टेज के thousands मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है। अभी समझा बेटा? सर आप उल्टा बोले। Sir, once again repeat. What is the enzyme maltase की maltose? Maltase. Maltase is the enzyme. Maltose is your carbohydrate, Substrate. substrate, ठीक है? अच्छा, अब मैं माल्टेज का एक मॉलिक्यूल लूंगा ना, माल्टेज का एक मॉलिक्यूल, that one molecule of maltase can break down thousands of molecules of maltose। Are you understanding? Yes. तो Yes, yes. ऐसे मेरे पास थोड़े मॉलिक्यूल, I will take very few molecules of maltase which will do my work for the entire lot of maltose which is present with me। समझा? यस। Yes. अरे इसका चलो मैं इसका मतलब समझाता हूँ तुमको, एनालॉजी समझाता हूँ मैं तुमको इसका। अभी ऐसा है ना बेटा, एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है? एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस बिल्डिंग में बिल्डिंग पूरा तैयार हो गया है और एक बिल्डिंग को कलर करने का है, ठीक है? तो टू ऑप्शंस, देयर इज वन एजेंसी जिसमें वो बोलता है कि एक रूम को 5 लोग कलर करते हैं, तो हर एक रूम के लिए सपोज देयर आर 10 रूम्स, तो मुझे कितने लेबरर्स लगेंगे? 50 लेबरर्स लगेंगे। नहीं मैंने क्या बोला? हाँ करेक्ट बोला। यस बरोबर। बरोबर ठीक है। है, एक बिल्डिंग में 10 रूम्स हैं और एक रूम को 5 लेबरर्स लगते हैं। 10 मतलब एक घर को 5 लेबरर्स कलर करते हैं और उसके अंदर ऐसे 10 घर हैं, तो मुझे 50 लेबरर्स लगेंगे। दूसरी एजेंसी 50 क्या बोलती है कि भाई मेरी एजेंसी में बंदा इतना एफिशिएंट है कि एक घर को एक ही बंदा पूरा कलर कर देगा और वो भी एक दिन के अंदर, ठीक है? सो और फिर मुझे टोटल कितने आदमी लगेंगे बेटा? 10 लगेंगे। 10. हाँ, so what is better, 10 people or 50 people? 10. 10 people. 10 people, right? तो एंजाइम्स का ये रहता है बेटा, वो एंजाइम एक मॉलिक्यूल ना वो बहुत सारी चीजों पे काम कर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे एक साथ मतलब क्विकली काम कर सकता है, तो इसीलिए वो हाईली एफिशिएंट होता है, इसीलिए वो वेरी स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है? अभी समझा? हाँ। Yes. Yes. ये देखो, this substrate molecule will come, convert into product and go, ऐसा। यहाँ पे सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम का शेप मैच हुआ तभी रिएक्शन हुआ, अगर वो शेप मैच नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। वो हम आगे देखेंगे, शेप स्पेसिफिक एंड ऑल, बट इसमें मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार पीछे लेता हूँ। देखो, दिख रहा है बेटा सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम का शेप, Yes. है ना? Yes. अच्छा, Almost same है। अगर सबस्ट्रेट ट्रायंगुलर It's a होता match. या फिर सर्कुलर होता, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होता। ये देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आया, वो एंजाइम में फिट हुआ, प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, गया। अब दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, फिर से इसी एंजाइम पे काम होगा, ऐसा। अच्छा, द अदर प्रॉपर्टी इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अभी देखो, टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑप्टिमम एक्टिविटी, मतलब तुमको बताता हूँ। ये जो ग्राफ के अंदर है ना, ये जो पहला वाला था, ये जो एरिया है इसके अंदर जो रेंज है टेम्परेचर का, मतलब फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, इस टेम्परेचर रेंज में, इस ऑप्टिमम रेंज में my enzyme is going to work very efficiently। हाईएस्ट रेट मुझे इस टेम्परेचर में मिलेगा। अच्छा, इस टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हुआ, बहुत कम हुआ या फिर बहुत ज्यादा हुआ, तो मेरा एंजाइम काम ही करना बंद कर देता है। वो बहुत टेम्परेचर स्पेसिफिक रहता है बेटा,
ठीक है, समझा? पर अगर Yes. टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो? हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ग्राफ देखो बेटा, देखो वाई एक्सिस पे रेट दिया है, यस वाई एक्सिस पे रेट दिया है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया है। ये इस ग्राफ के हिसाब से 293 और 313 केल्विन के अंदर इसका रेट हाईएस्ट है, अच्छे से काम कर रहा है मेरा एंजाइम। बट अगर Yes. टेम्परेचर उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो रेट एकदम गिर जाता है, मतलब मेरा एंजाइम काम नहीं करेगा। दिस एंजाइम इज रेंडर्ड inactive at this definite temperature, this optimum range। ये देखो बेटा, at this temperature पे ना इसका रेट हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है। that specific temperature is termed as the optimum temperature। अगर ये टेम्परेचर रहेगा तो ये एंजाइम बेस्ट रेट देगा, ऐसा सिंपल एज दैट। बट दैट डजंट मीन कि यही टेम्परेचर पे वो काम करेगा। there is a good range of temperature, बट इस टेम्परेचर पे मुझे मैक्सिमम रेट मिलेगा, ऐसा है। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में ऐसा नहीं होता ना बेटा। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में कैसा है भाई, आयरन है, एक टेम्परेचर है, उस पे वो रेट दे रहा है, वो जो रेट दे रहा है वही रेट मिलेगा, सिंपल एज दैट, ऐसा। यस सो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर, देखो बेटा, ये देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप थोड़ा भी आजू बाजू में हिलोगे तो रेट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस कम हो जाए। नहीं अनबैलेंस क्यों बेटा, इट विल डिक्रीज, इट कम विल होगा, कम। डिक्रीज। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हमने कम किया या ज्यादा किया तो रेट मेरा कम होगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया तो ओके है, रेट मेरा फिर भी ठीक रहेगा। पर अगर मैंने बहुत ज्यादा कम किया या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरा एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, ग्राफ समझ में आया? बहुत Yes. सिंपल ग्राफ है बेटा। यस Yes. Okay. ये देखो 298 केल्विन to 310 Kelvin। Enzymes to be active, for enzymes to be active very nicely, 298 Kelvin to 310 Kelvin, इस रेंज में टेम्परेचर रहना चाहिए। ये बेटा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमंस का? 37 डिग्री 35 तो 37 40 केल्विन में बताएं। 100 Kelvin 100 केल्विन। 310 310 एग्जैक्टली कितना 300 करेगा? अरे भाई 35 या 37 के अंदर आप 273 ऐड कर दो, उससे आपको पता चल जाए केल्विन कितना है। तो अगर आप देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 310 केल्विन। सो एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर योर एंजाइम्स आर एट द हाईएस्ट पीक ऑफ देयर एक्टिविटी। एट दैट टेम्परेचर दे गिव यू द बेस्ट वर्क। टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो आपका एंजाइमेटिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वो उसका रेट डिक्रीज कर देगा रिएक्शन का। ठीक है, तो इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तब हम लोग वीक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एंजाइम का जो रिएक्शन हो रहा है वो स्लो हो रहा है, वो फास्ट नहीं हो रहा है। सर ये सभी ये एंजाइम के लिए यस बेटा, ये range? यस बेटा, ये सब एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स आर बायो बायोकैटलिस्ट तो ये बायो कैटलिस्ट कहाँ पे काम करेगा? बायो के अंदर। व्हाट इज बायो? बायो मींस लिविंग, है ना बेटा? बॉडी लिविंग हाँ, बॉडी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ओहो, इसके तो एब्स है। डेटा Why are they zooming this? I don't know. It was so scary. हाँ, so highly active under optimum pH. टिम टेम्परेचर का ग्राफ था, वैसा ही ग्राफ मैं pH के लिए बना सकता हूँ। So my enzymes they are very efficient at a optimum pH। ठीक है, उससे कम ज्यादा हुआ तो एंजाइम एक्टिविटी रुक जाता है, बंद हो जाता है। ये देखो ऑप्टिमम पीएच इज 7। बेटा बॉडी का पीएच पता है? पहले तो ये बताओ, पीएच पता है सब लोग को? यस 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 पीएच से क्या पता चलता है बेटा?
Acid, base और acidic Yeah. और neutral. base base या neutral है. वेरी गुड. एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. तो 7 pH सर मतलब क्या pH का बेटा? फॉर्मूला क्या है? pH का formula? फॉर्मूला क्या है? pH का फॉर्मूला is minus log to the base 10 of hydrogen ions present inside the solution. Bouncer. Yes. अच्छा, pH का फुल फॉर्म पता क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस. Hydrogen. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये ना आप एक्चुअली पहले दिस चैप्टर वाज अ पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, बट न्यू सिलेबस में ये जो आयनिक एक्टिविटी है, पीएच स्केल जो है, ये 12th में डाल दिया है. तो अभी मैं एक 12th का बैच है, उसको मैं यही वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. तो जब आप 12th में आओगे तब मैं आपको Could we pH come? क्या बेटा? नहीं, यू कैन नॉट कम, इट इज इन डिफरेंट क्लास. तो ये क्लास होता तो मैं तुमको बुला भी लेता. तो उसके अंदर पीएच का स्केल वगैरह वो सब पढ़ाऊंगा. ठीक है? सो डोंट वरी, हैव सम सब्र. आप सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो. ठीक है ना? तो pH level should be between, if you as you can see over here, the range is from 5 to 9, जिसमें rate optimum रहेगा, but best rate will be given at 7. 7 से कम या ज्यादा हुआ तो रेट मेरा कम होगा, और बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा हुआ तो forget it, the enzyme will deform, वो काम करना बंद कर देगा. ये देखो, so this activity, का जो एक्टिविटी है ना, उसको हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं. मॉड्यूलेट कर सकते हैं मतलब उसकी एक्टिविटी को बहुत फास्ट कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स. तो ये कंट्रोल सर कैसे बंद नहीं करते ना? बंद कर सकते हो ना. पॉइजन्स अगर ज्यादा डाल दिया तो डिक्रीज होते होते बंद ही हो जाएगा. तो इन शॉर्ट आप कंट्रोल कर सकते हो एंजाइम्स को. तो ये जो दवाइयां वगैरह देते हैं ना बेटा हम लोग, तो ये दवाई जो होती है ना, जो बॉडी में एक्ट करती है, उस दवाई को भी क्या बोलते हैं, इनिशिएट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एंजाइम होता है बॉडी में. तो जब आप बीमार होते हो ना, तो आपकी बॉडी स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है. तो जब आप डॉक्टर जो दवा देता है, वो दवा आप खाते हो, तो वो दवा के ऊपर वो एंजाइम काम करता है, और तब जाके आप ठीक होते हैं. सिंपल. सो सो रही है, रुको. कौन रो रहा है बेटा? रो रहा है. सर एग्जांपल क्या? हाँ बेटा, Activity. देखेंगे एग्जांपल्स, बिल्कुल देखेंगे हम. ये देखो, starch is broken down into glucose in the presence of the enzyme amylase. तो amylase के प्रेजेंस में नॉर्मली भी अपना starch will convert to glucose. अगर मुझे इसका एनहांस करना है या फिर इस रिएक्शन को मुझे और ज्यादा स्पीड अप करना है, कैटालिटिक एक्टिविटी हाई करना है, तो सोडियम आयंस अगर इसके साथ ऐड कर दिए जाए या फिर सोडियम आयंस उसके साथ प्रेजेंट हो, तो भाई फास्ट हो जाती है. ठीक है? सो आई कैन से दैट Na plus sodium plus ion is a enzyme Catalytic. activator. Yes. It is a Enzyme activator. ऐसा. एग्जाम्पल लिख लिया? Yes. अच्छा. Sodium ions, manganese ions, ions, cobalt ions, these are some more examples of activators. बेटा, what can you see over here? किसी को कुछ दिख रहा है, मुझे बता सकते हो? Sir, charges. Okay, fine. One is the ions are acting as the activators. Very good observation. Any other observation which you can see? सर मेटल binding site. मेटल बाइंडिंग. नहीं, वो छोड़ो, वो जो लिखा हुआ है वो रहने दो बेटा. वो एक्टिवेटर्स देखो बेटा. आप क्या बोल रहे थे बेटा शारन? मेटल बाइंडिंग साइट क्या होता है? वो मैं बताऊंगा, वो भूल जाओ. वो अभी वो 2 मिनट के लिए रखो. आप एक्टिवेटर्स देखो, ये मत देखो. आप एक्टिवेटर्स की तरफ देखो. एक तो मुझे
एक ने मेरे को बोला आयंस है, वेरी गुड. दूसरे ने मेरे को अभी बोला कि ये सब पॉजिटिव आयंस है. व्हाट एल्स यू कैन सी इन दीस? कैटलिस्ट के टाइम पे मैंने बताया था, अगर आप थोड़ा सा उसको केयरफुली block. ऑब्जर्व. डी ब्लॉक. D block. वेरी गुड, D एक्सीलेंट. block. D block. Right. ऐसा तुम लोग को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए बेटा. ऐसे तुम लोग ऑब्जर्वेंट रहोगे तो ही अच्छे से मतलब जेई और नीट वगैरह पे काम आएगा अपने को. अगर आप देखो, सोडियम इज नॉट अ डी ब्लॉक, बट इफ यू सी मैंगनीज, इफ यू सी कॉपर, इफ यू सी कोबाल्ट, these are metals which are majorly from your D block elements. तो D block elements के D block के जो elements हैं या फिर उनके compound हैं, they are acting as a catalyst in your क्या बोलते हैं normal industrial catalysis, but they are acting as activators also when it comes to enzymatic analysis catalysis. अच्छा, ये ions body में present होता है क्या बेटा पहले से? Yes. Yes. No sir. Yes. नहीं, yes बच्चे. आंसर इज Yes. सोडियम हम लोग खाते हैं. कैसे सर? हाँ अरे सोडियम बे- खाते हैं. सोडियम खाते हैं, आयरन खाते हैं, सब ये Yes. सब मिनरल्स और विटामिन्स के Yes, थ्रू मिलता है yes. अपने को. कॉपर कैसे खाते हैं? कॉपर भी खाते हैं बेटा. ऐसा कॉपर मतलब लोहा नहीं खाते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, जो हम लोग मिनरल्स खा रहे हैं, जो विटामिन्स खा रहे हैं ना, उनके थ्रू हम लोग को ये सब थोड़ा बहुत आयंस मिलता रहता है. ठीक है. सर CO मतलब कोबाल्ट है. सीओ मतलब कोबाल्ट है, सीयू मतलब कॉपर है. ठीक है. CO Yes. CO को is cobalt and Cu Cobalt. cuprum Yes. cuprum is your copper. Copper. how ठीक है. अब ये देखो बेटा, ये जो आपको रंग बिरंगी दिख रहा है ना जेम्स जैसा, दैट इज योर एंजाइम. ठीक है. तो ये एंजाइम के अंदर ना एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस रहता है जहां पे ये मेटल आयन जाकर के बैठ जाएगा. ठीक है. ये मेटल आयन जाकर के बैठता है तो ये जो एंजाइम का बॉडी है उसको ज्यादा एक्टिव कर देता है, बिकॉज आई हैव अ चार्ज स्पीशीज ऑन दिस पर्टिकुलर एंजाइम. चार्ज्ड स्पीशीज विल इजीली रिएक्ट अदर स्पीशीज. ओके. नाउ ये जो ऊपर से ब्लू वाला आया, दैट इज योर सबस्ट्रेट. दिस substrate is going to bind, it is going to attach to the enzyme at the active site. वो रेड लाइन दिख रहा है आप लोग को, that is the active Yes. site. वो एक्टिव साइट का शेप वो सबस्ट्रेट के शेप से मैच होना चाहिए. अगर उनका शेप मैच नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा. When I say shape, this is what I mean बेटा. वो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं, ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से मैच होना चाहिए. अगर सर यहाँ पे पूरे हेलो बोलो. सर वो पूरे रेड लाइन पे मैच होना चाहिए. हाँ, वो उस पूरा रेड लाइन मतलब वो End तक. नहीं, एंड तक नहीं. जितना सबस्ट्रेट आ रहा है वो उस साइट के ऊपर बाइंड कर पा रहा है कि नहीं, ऐसा सिंपल एज दैट. अगर ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता तो यहाँ पे रिएक्शन हो पाता बेटा? नहीं. No. No. Correct. So हमने देखा enzyme activators. Now we can also increase the activity of catalyst in the presence of coenzymes. ये कैसे होता है वो देखते हैं. ये देखो, सबस्ट्रेट है, एंजाइम है. सबस्ट्रेट का शेप एंजाइम के साथ मैच नहीं हो रहा है. मतलब एंजाइम का जो शेप है, जो एक्टिव साइट है, यहाँ पे जो कट पीस दिख रहा है बेटा तुमको, दैट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. द सबस्ट्रेट शुड कंप्लीटली फिट इन दिस एक्टिव साइट फॉर द रिएक्शन टू अकर. अभी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आया सबस्ट्रेट का वो छोटा है, वो प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है उस साइज में. तो मतलब मुझे इस एंजाइम के साइज को या फिर शेप को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, तब जाके सबस्ट्रेट कम हो पाएगा. अब देखो, ये कोएंजाइम आया और वो बैठा, सबस्ट्रेट इजीली फिट हो गया इसके पास. ठीक है. Yes. 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 एंजाइम था, उसके साथ एक और मॉलिक्यूल आया, उसमें अटैच हुआ एक्टिव साइट पे. अब वो कोएंजाइम जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे बैठ गया, सबस्ट्रेट और एंजाइम का शेप परफेक्टली मैच हो गया, लॉक एंड की मैकेनिज्म. तो अब मेरा रिएक्शन हो सकता है. तो एक होता है मैं एंजाइम का एक्टिविटी एनहांस करूंगा बाय यूजिंग
क्या बोलते हैं, enzyme activators which are generally metal ions. Second is I will enhance the activity of enzymes by using coenzyme. Using मतलब obviously naturally present रहता है. So enzyme plus coenzyme are acting together on the substrate. Mostly these coenzymes are nothing but your vitamins. तो बोलते हैं ना विटामिन की कमी है, तो विटामिन की कमी को दूर करना चाहिए अपने को. So that is the non-protein. Enzyme is your protein. It's a complex molecule, but coenzyme is not a protein. It is a vitamin. Vitamin is nothing but a simple molecule जिसके अंदर metals, जिसके अंदर non-metals molecules होते हैं. Enzyme is the protein part. Coenzyme is the non-protein part. Look at the last part. The last part is the influence or stop the activity of your enzymes. Okay. So let us do this in the next class. No. Yes, sir. You know. अरे भाई मेरा पर अभी करो ना. अभी करो ना.